Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, my dear students, today we are going to cover the first lecture of advanced database systems, which is mostly related to the distributed database systems in the series of lectures of the course Advanced Database Systems. So, let's start. A distributed database system consists of collection of sites connected together via some kind of communication network, in which each site is a full database system site in its own right, but the sites have agreed to work together so that a user at any site can access data anywhere in the network exactly as if that data were all stored at the user's own site. So what you've learned so far in the first course of database system, that we have SQL queries and we have Oracle 11g installed at our own machines, and we try to perform some queries, whether through the SQL command prompt or whether through the SQL developer, and these queries retrieve the data which is already stored in the Oracle's database as a simple database and retrieve the data from that. But in the real world, as we are living in, nothing is centralized, everything is almost distributed in nature, because whether you take the bank's database is distributed. They have different locations, different bank's database is distributed at different locations. They have a central branch at some city, but the data is distributed at different servers. When you call about the airline industry's data is distributed at different locations, and even that comes the result that we query comes from combining the different databases all together. Not only the single database that is distributed across several locations, but that comes from the several databases. For example, if you go to the different websites of like govoyages.com, easyjet.com, when you try to search the itineraries means the ticket from one location, for example going from Karachi to UK or going from Karachi to France to Paris or some sort of city. So it gives you the different collection of stops and collection of airlines tickets, like from Karachi to Dubai. You can go from Emirates from Karachi to Dubai, and from Emirates from Dubai to Paris you may take another flight or another airline. And for example, when I went to Australia last time, so I took a Turkish airline that took me from Karachi to Istanbul, and from Istanbul I took an Austrian airline that took me from Turkish airport to the Vienna International Airport in Austria. So all of these airlines have their own databases. They are also distributed, and the data that we query, that perform, that comes by combining those different itineraries. So as we can see that at our single laptop that we are searching, for us it comes from the central database, but it comes from different databases altogether. So not only there is a connection between different databases, but even the same database is being distributed at the different locations. Like if you search on the Google, it comes google.pk. If you search from google.india, it is google.in, google.dubai, so google.ua. So the different servers are available over there, and even different servers that store the data which can be accessed locally. For example, the videos that are being uploaded in the Asia from China, Pakistan, India, they try to store those data in the Dubai databases that is available the server at the Dubai, and when they are being searched, so it looks like this locally come from Dubai server, and the data that is being uploaded from USA, so the data is being stored at the data center in the USA. So the Google's data is also distributed at different locations altogether. So today
the nature of the databases is more of a kind of a distributed, and as I said that they are all connected with the communication network, and there are different routers between them, and each site is a full database system site in its own right, but these sites have agreed to work together so that a user at any site can access data anywhere in the network exactly as if the data were stored in the user's own site. So today's world, the data is being distributed at different data servers. For example, this is the picture that example depict the distributed nature of the databases. We have a database that is available at New York side, we have a database that is available in London side, we have a database at the San Francisco side, we have at Los Angeles side, and all of these data are combined together with this communication network. So each side is a database in its own way, but they are also in the distributed in nature, because at the New York side, maybe the employees that are working in the New York, the data is stored at the New York side, and the employees that are working at the London side, their data is stored at the London side. But the people from New York side can access the data from the London side through the communication network, and the people who are working on the London side can access the data from the New York side through the communication network. But keeping the employees from the London side at their own location will help them out to quickly access the data and reduce the input and output network on the input output operations that are being performed in the communication network to reduce the congestion at the communication network. The component site, as we have seen in the previous slide, are physically dispersed. Dispersed means they are dislocated, possibly in fact geographically dispersed also. It means it is also possible that the data is available at the central location, but is distributed in different nature, for example in different hard drives as well. So that can also be called the distributed. If we have learned about in the 3-tier architecture in the computer communication network, where we have a client, where we have application data, where we have database data. So in 3-tier architecture, the application data or business logic resides in the central server, and another server behind it that contains the database, that contains only the raw data that comes from the database. So that is also distributed in nature. So as the first point says, the component sites are physically dispersed, possibly in fact geographically dispersed also. So maybe a single server के अंदर जो है, there are different hard drives, data is being distributed in different hard drives, but it is also possible that they are geographically dispersed at the different distinct locations. What are the advantages of distributed database? Since organizations are usually distributed already, at least logically, into division, departments, work groups. Logically means we have different tables, like we have seen there's the employees data, we have departments data, we have salary data. So that is, the data is distributed logically, that is not distributed physically. And distributed database provide connectivity among islands of information, and distributed database provide connectivity among islands. Islands of information means huge data, the larger data, and it increase accessibility. Increase accessibility means अगर एक ही कमरे में फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हो, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, HR डिपार्टमेंट्स की, आपके पास जो है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट की सारी फाइल्स पड़ी, अगर आपको भेजा जाएगा इसमें से ढूंढ के आओ एक फाइल कंप्यूटर डिपार्टमेंट की, तो आपको सारी फाइल्स ढूंढना पड़ेंगी, जगह इनमें से जाके आपको कंप्यूटर डिपार्टमेंट की फाइल ढूंढनी पड़े। लेकिन अगर आपको डिफरेंट रूम्स बना दिए जाएँ कि ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट का रूम है, ये HR डिपार्टमेंट का रूम है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रूम है, तो आपको अगर कहा जाए तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट की फाइल ढूंढ के आओ, तो आप HR डिपार्टमेंट में और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, जो सबको मिला के गए सेंट्रल लोकेशन में रखने से जो होगा, ढूंढने में टाइम लगेगा, वो अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएंगे। या उसी सेम कमरे के अंदर तीन अलमारियाँ रख देंगे, भाई इस अलमारी में कंप्यूटर का डाटा है, इस अलमारी में जो है वो अकाउंट्स का डाटा है, इस अलमारी में जो है वो HR का डाटा है, तो उसमें भी यानी कि एक सेम लोकेशन पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस? इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस आर ऑफ वेरी गुड यूज, बट they are very complex to manage.
सेंट्रलाइज लोकेशन में तो डेटाबेस एक ही जगह पे होगा, डेटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ होगा, सिक्योरिटी भी इसको प्रोवाइड करनी है और जो है डेटा भी एक ही जगह पे रिजाइड करना है, वहाँ से एक्सेस होगा तो वो आसान होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में डेटा को डिस्पर्स करना है डिफरेंट लोकेशन से, फिर वहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है ताकि डेटा हर जगह से जो है वो आए। उसके अलावा हमें DBAs भी चाहिए होंगे जो डिफरेंट लोकेशंस पे काम करेंगे, जिसको कॉम्प्लेक्स नेचर का पता हो। तो ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस आर मोर सिक्योर इन comparatively to centralized, but they are more complex to manage. So distributed database system should look exactly like a non-distributed system, क्योंकि client और जो main user होगा, for him or for her the accessibility of the data should not look like a distributed nature, कि उसको पता चल जाएगा यार इतनी देर लगा रहा है तो मतलब यहाँ से नहीं डेटा कहीं और से आ रहा है तो देर लगाएगा, और ये डेटा यहाँ पड़ा हो तो ये ज़्यादा जल्दी हमें मिल जाएगा। तो फॉर हिम और फॉर इट शुड नॉट बी द कंसर्न, इट शुड बी द अवर कंसर्न एज IT प्रोफेशनल। सो ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर और शुड बी इंटरनल और इम्प्लीमेंटेशन लेवल प्रॉब्लम, नॉट एक्सटर्नल और यूजर लेवल प्रॉब्लम्स। सो distributed database system should look exactly like a non-distributed system. All of the problems of distributed systems are should be internal or at implementation level, not external or user level problems. यूजर के स्तर का दर्द नहीं होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस पीछे बैकग्राउंड में चल रहे हैं. They should be managed directly by the IT professionals. And below these are the 12 principles of the distributed databases: local autonomy, no reliance on a central site, continuous operation, location independence, fragmentation independence, replication independence, distributed query processing, distributed transaction management, hardware independence, operating system independence, network independence, and DBMS or database management system independence. So let us discuss all of these principles one by one. The first principle is local autonomy. So local autonomy means that all operations at a given site are controlled by that site. No site X should be dependent on some other site Y for its successful operation. Local autonomy has implied that local data is locally owned and managed with local accountability. Security, integrity, and storage is under control of the local site. As we have seen in the previous image that I have shown you, the London site है, New York की site है, और different cities की site है. तो local autonomy means that जो भी operations perform होंगे उस local site, they will be controlled by that site. कोई दूसरी साइट उसकी एडमिनिस्ट्रेशन या उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगी. अगर अगेन दूसरी साइट उसके लोकल साइट को कंट्रोल करेगी तो वो वही बात हो जाएगी, फिर उस साइट पे हमारी रिलायंस हो जाएगी. तो फिर वही सेंट्रल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर वो क्रैश हो गया, उसमें कोई मसला हो गया तो हर चीज़ डेटा हमारा चला जाएगा. तो वही बात है कि अगर कोई एक साइट पे डेटा रखा हुआ तो इट शुड बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट और उस पर उसकी कोई डिपेंडेबिलिटी दूसरी साइट पे नहीं होना चाहिए. फॉर रेगुलर ऑपरेशन, मेंटेनेंस के हवाले से या कोई और डेटा बैकअप के हवाले से जो है हम कह सकते हैं कि इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम अनदर साइड. लेकिन फॉर द रेगुलर ऑपरेशन, फॉर अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रेगुलर ऑपरेशंस, इट शुड बी लोकली ऑटोनोमस इन इट्स ओन वे. लोकल ऑटोनॉमी आल्सो इम्प्लाइज दैट लोकल डेटा इज लोकली ओन्ड एंड मैनेज विथ लोकल अकाउंटेबिलिटी, कि वही डेटा वहाँ पे होना चाहिए, वहीं से एंटर होगा, वहीं से मॉडिफाइबल होगा. सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टोरेज इज अंडर कंट्रोल ऑफ द लोकल साइट, कि सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी जो होगी उसकी और स्टोरेज भी उसकी जो है वो लोकल साइट पे उसकी मैनेज होगी. तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लोकल ऑटोनॉमी, टू मेक दैट डिस्ट्रीब्यूटेड साइट लोकली ऑटोनोमस. नो रिलायंस ऑन सेंट्रल साइट. सेम point in continuation with the previous point, कि our side must be treated as equal. There is no particular reliance on a central master, कि सारे साइट्स को एक ही तरह से जो है वो ट्रीट किया जाएगा. And there is no particular reliance on a central master, because if there will be a reliance on a central master, then again हमारा जो है वो सेंट्रलाइज डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते. कि अगर मास्टर स्लेव में सारे मास्टर पे डिपेंड करेंगे तो अपने फंक्शन के हवाले से, सो it will not adhere to the distributed nature of the distributed databases. Because of the two problems, central side might be a bottleneck and system should be vulnerable if the central side goes down. Central side might be bottleneck का जो प्रॉब्लम है वो आपने जो है वो पढ़ा होगा कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर.
बॉटलनेक क्या होता है कि जिस तरह आपके घरों में फिल्टर की जो प्लांट से जो आपके पास वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो पानी आता है तो बहुत बड़ा होता है, उसका जो 19 लीटर का जो है नीचे से बहुत राउंड होता है, बड़ा होती है बोतल के ऊपर से छोटी सी एक उसका मुंह निकला हुआ होता है जहाँ से पानी आता है। तो अगर जैसे हम उसको उल्टा करेंगे तो पानी इसमें से आहिस्ता से आएगा, ठीक है, एकदम से पानी नहीं निकलता। तो सेंट्रल साइड का बोटलनेक का मसला ये है कि डेटा सेंट्रल साइड पे तो बहुत पड़ा हुआ है, जिस तरह से बोतल में पानी बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम उसको एक्सेस करेंगे, पानी को निकालेंगे तो बोटलनेक आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी साइट्स उस सेंट्रल साइड को एक्सेस कर रही होंगी। तो जैसे ही वो एक्सेस करेंगी तो उसमें नेटवर्क की कंजेशन बढ़ेगी और बोटलनेक इशू हो जाएगा कि वो चीज़ें वहाँ पे फंस जाएंगी और डिले आ जाएगा। तो ये हमारा नहीं चाहते, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में से नहीं है, क्योंकि लोकली डाटा लोकली एक्सेस हो होगा एंड सिस्टम वुड बी वल्नरेबल इफ द सेंट्रल साइड गोज डाउन। मीन्स सिस्टम जो है आपका वल्नरेबल मीन्स जो कि उसकी प्रियंट अटैक्स, अगर जो है सेंट्रल साइड गोज डाउन तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो डाउन चला जाएगा, सारी की सारी साइट्स जो है फंक्शनल जो है वो फंक्शन करना जो है वो छोड़ जाएंगी। Continuous operation, the third principle, system should provide reliability and greater availability. What is reliability? The probability that a system is up and running at any given moment. A system should be running even if it face any crash or failure. The probability के भाई system जो है वो काम कर रहा होगा और जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो काम करता रहे, and running even if it face any crash or failure. तो वो जो है वो अगर क्रैश हो जाए तो तब भी जो है वो सिस्टम जो है हमें रनिंग स्टेट में हो। इसका फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा रेप्लिकेटेड डेटाबेसेस का, कि एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस सर्वर पे डेटा रेप्लिकेट हो रहा होगा और एक डेटाबेस सर्वर क्रैश हो जाए तो उसकी जगह पे दूसरा डेटाबेस सर्वर जो है अप हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो अवेलेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज अप एंड रनिंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट अ स्पेसिफाइड पीरियड। अवेलेबिलिटी विल बी द प्रॉपर्टी के एक से लेकर इस स्पेसिफाइड टाइम में सिस्टम हमारा काम कर रहा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो स्पेसिफाइड टाइम में पता होगा। जिस तरह से हमारे पास मेंटेनेंस के हवाले से वी रिसीव ऑफन द एसएमएसेस फ्रॉम आवर बैंक्स कि भाई रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक जो है सिस्टम अनअवेलेबल होगा ड्यू टू मेंटेनेंस, तो वो उस स्पेसिफाइड टाइम के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए विल बी अवेयर कि भाई इस टाइम पे जो है वो हमारा बैंक डेटाबेस ऑफ होगा, विल नॉट बी एबल टू एक्सेस एंड परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। Location independence. Location independence also known as location transparency. Location independence is simple. Users should not have to know where data is physically stored. कि कहाँ भी डेटा जो स्टोर है यूजर के लिए कोई सरकत नहीं है, इसका कोई कंसर्न नहीं, but rather should be able to behave at least from a logical standpoint as if the data were all stored at their own local site. कि बाहर से जैसे ही डेटा को एक्सेस कर रहा होगा it will be shown as it will be stored at their own local site. तो वो जैसे कि आपको वहाँ से फील हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ लोकेशन ट्रांसपेरेंसी के हवाले से आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब पे जब कोई जो है वो शेयर हो रहा होता है तो वहाँ से उसको पता होता है उस वीडियो को कि वो किस रीजन के अंदर वो शेयर करना चाहते हैं। जैसे ही आप वीडियो अपलोड करें, आप उसके वीडियो की एक्सेसिबिलिटी भी आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि भी एशिया में, इंडिया में आपका कोई वीडियो या चाइना में या मुल्क में ये वीडियो रन ना होना चलो तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय योरसेल्फ। एंड लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, द पॉइंट इज के लोकेशन इंडिपेंडेंस के कहीं से भी डेटा आ रहा हो आपको ऐसे फील होना चाहिए कि आप ही के सिस्टम से आ रहा है, जिस तरह से आपके सेंट्रल लोकेशन से आपके अपने लोकल साइट से डेटा आ रहा है, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर से कहीं से यूएसए से कहीं से यूके से डेटा लेकर आ रहा हूँ। इट विल बी द कंसर्न ऑफ द आईटी प्रोफेशनल, वो किस तरह से मैनेज करके इसको लेकर आ रहा है। जिस तरह से ऑप्टिमाइजेशन होती है कि कहीं जहाँ से जितने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़्यादा हॉप्स इस्तेमाल होंगे तो बेहतर ये कि क्यूरी को ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि डेटा को जल्दी रिट्रीव किया जाए। इसलिए तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते हो वीडियो, कहीं भी वीडियो कहाँ पे भी स्टोर हो, कहाँ पे भी हो, आपका जल्दी से हो जाए, एकदम से सर्च में आ जाती हैं चीज़ें।
Fragmentation independence. Data can be stored at the location where it is mostly frequently used, so that the most operations are local and network traffic is reduced. So data can be stored at the location कि जहाँ पे ज़्यादा वो frequently इस्तेमाल होता हो ताकि जल्दी इसको एक्सेस हो सके, so that the most operations are local and network traffic is reduced. जिस तरह से आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि आपके पास मेन मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क के अंदर मेमोरी के बाद आपके पास जो CPU होता है, प्रोसेसर, उसके अंदर कैशेज होते हैं। तो जैसे ही मेमोरी के बाद आपका जो हार्ड ड्राइव से डेटा आता है आपका मेन मेमोरी के अंदर, फिर मेन मेमोरी से आपका कैशे के अंदर, तो जो फ्रीक्वेंटली डेटा इस्तेमाल होता है वो आपका मेन मेमोरी में ही रहता है या आपका कैशे में ही रहता है। जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होता वो फ्लैश आउट करता रहता है आपका डेटाबेस के अंदर। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगा उसको एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा जल्दी होना चाहिए, तो बेटर कि आपका वो लोकली डेटाबेस जो है वो होना चाहिए। अ सिस्टम सपोज डेटा फ्रेगमेंटेशन इफ अ गिवन रेलवार कैन बी डिवाइडेड अप इनटू पीसेस और फ्रेगमेंट्स फॉर फिजिकल स्टोरेज पर्पसेस। कि सिस्टम जो है डेटा फ्रेगमेंटेशन को सपोर्ट करता है, जैसे कि एक रेलवार का मतलब है रिलेशनशिप या टेबल जो हम डेटाबेस के अंदर कहते हैं, कैन बी डिवाइडेड अप इनटू पीसेस और फ्रेगमेंट्स फॉर फिजिकल स्टोरेज पर्पसेस। आपके सिस्टम के अंदर आपने वी हैव सीन द यूटिलिटी ऑफ डेटा ऑफ डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि अगर आपने पढ़ा हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, नहीं तो आप पढ़ेंगे कि डेटा जो है जैसे ही आप स्टोर करते हुए जाते हो वो आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करता हुआ जाता है। फॉर एग्जांपल 2 GB की आपने एक चीज़ स्टोर की, फिर आपने 2 GB की स्टोर की, फिर आपने 3 GB की स्टोर की। अब 2 GB 3 GB ये कंटिन्यूस आपकी स्टोरेज हो गई। अगर आपने 2 GB डिलीट किया, 2 GB एक मूवी है और 3 GB के बीच में जो 2 GB है उसमें से आपने जो बीच वाली 2 GB डिलीट कर दी, और फिर आपने एक 3 GB की मूवी सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी करना चाह रहे हो। जब कॉपी करना चाह रहे हो तो वो उन 2 GB 3 GB के बीच में नहीं आएगी, वो 2 GB और 3 GB के बाद में आएगी। तो बीच में 2 GB का जो स्पेस है वो खाली हो गया जो कि मूवी को हमने डिलीट किया। तो इस तरह से जो हम फाइल डिलीट और स्टोर कॉपी डिलीट और कॉपी करते रहते हैं, तो इस तरह से बीच बीच में छोटे छोटे स्पेसेस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, जिसको कहा जाता है डेटा फ्रेगमेंटेशन। अब हम सिस्टम यूटिलिटी, आप जब भी विंडोज वगैरह यूज़ करते हो देयर इज सिस्टम यूटिलिटी कॉज डेटा डीफ्रेगमेंटेशन। तो जब डीफ्रेगमेंटेशन आप करते हो तो आपका सिस्टम जो है आपकी डेटा को उठा के ऑर्गेनाइज करता हुआ जाता है, एक जगह पे स्टोर करता हुआ जाता है सिमिलर डेटा, नॉट सिमिलर डेटा बट ऐसी लोकेशन के जो बीच में खाली स्पेस है वो आस्ते आस्ते मूव करता हुआ जाता है ताकि आपका एंड में खाली स्पेस बन जाए और कंटिन्यूस आपका डेटा आ जाए। इससे क्या होगा, आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है दैट विल बी इंक्रीज्ड, और आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है उसको भी आसानी होगी आपके पेजिंग और सेगमेंटेशन को मैनेज करने के लिए। पेजिंग और सेगमेंटेशन भी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। So if a given railwar means relation can be divided up into pieces or fragments for physical storage purposes, कि उसको जो है फिजिकली हम उसको फ्रेगमेंट करके मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर कर सकें। जिस तरह से आपके रिलेशनशिप है एम्प्लॉइज़, तो एम्प्लॉइज़ के एक टेबल को आप डिकम्पोज कर सकते हैं मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स के अंदर, कि सेम एम्प्लॉय का डेटा जो है लंदन के एम्प्लॉयज़ का डेटा लंदन के डेटाबेस की लोकेशन में चला जाए और न्यूयॉर्क के एम्प्लॉयज़ का डेटा न्यूयॉर्क की साइड पे चला जाए। तो जैसे ही हम वो सर्च करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ तो वेयर सिटीज़ को लंदन, तो लंदन का जो डेटा है लोकली वहाँ से उठ के आ जाएगा और न्यूयॉर्क का डेटा लोकली वहाँ से उठ के आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि पूरे का पूरा डेटा एम्प्लॉयज़ का एक ना ही न्यूयॉर्क में रखा ना ही लंदन में रखा, बल्कि लंदन का डेटा लंदन में रखा और न्यूयॉर्क का डेटा हमने न्यूयॉर्क में रखा। इससे क्या होगा, डेटा डिफ्रेगमेंट हो गया। फिजिकली टेबल वही है लेकिन उसी टेबल को हमने डिकम्पोज कर दिया, फ्रेगमेंट कर दिया मुख्तलिफ डेटा डिकम्पोजिशन के अंदर, ताकि जो है वो उसको हम मुख्तलिफ लोकेशन में इसको स्टोर कर सकें। एग्जाम्पल जो मैं ये भूल गया था कि यहाँ पे स्लाइड में भी एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन इस के एम्प्लॉयज़ का डेटा है यहाँ पे हमारे पास E1 E2 E3 E4 E5 और जो है हमारे पास मुख्तलिफ लोकेशन है। तो न्यूयॉर्क में हमारे पास E1 E2 E5 जो है वो these people are working the न्यूयॉर्क साइड, और लंदन का जो है हमारा एम्प्लॉय E3 E4 जो है वर्क ऑन लंदन साइड। तो ये डेटा इसी टेबल को हमने डिकम्पोज कर दिया, फ्रेगमेंट कर दिया और डेटा को जो 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा है वो न्यूयॉर्क में रख दिया और लंदन में जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं उनका हमने अलग से डेटा वहाँ पे रख दिया। दैट इज़ वाई वी कॉल के इफ़ अ given relation can be divided up into pieces or fragments for physical storage purposes. Again I said the logical storage और physical storage. Logical storage हमारी वही सेम ही रहेगी, वही हमारे ऊपर एम्प्लॉय ही दिखेगा,
लेकिन फिजिकली डेटा डिफरेंट लोकेशंस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एक लोकेशन, एक पॉइंट हमने पढ़ी थी लॉजिकल के हवाले से, आई डोंट रिमेंबर कि वो कहाँ पे पढ़ी थी हमने। जिस तरह हम एम्प्लॉइज़ का टेबल बनाते हैं और डिपार्टमेंट्स का टेबल बनाते हैं, तो हार्ड डिस्क में किस तरह डेटा जगह स्टोर होता है वो फिजिकली कंबाइन होता है, लेकिन एम्प्लॉइज़ का डेटा एम्प्लॉइज़ के टेबल में, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट। अब टेबल क्या है, द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और फिजिकली डेटा कंबाइन एक जगह पर रखा होता है, लेकिन उसी टेबल को अगर हम अलग अलग स्टोर कर दें डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स के अंदर, तो वो फिजिकली लॉजिकली सेम है लेकिन फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलग है। और अगर जब हम जैसे टेबल का डेटा एक ही जगह पे रखें, मतलब एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट्स और सैलरी, तो एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट और सैलरी दैट इज लॉजिकली वो डेटा डिफरेंट है लेकिन फिजिकली एक हार्ड ड्राइव पे रखा हुआ है। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड द रिलेशनशिप। तो टेबल जो है एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जो डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं फिजिकली, दैट इज द फिजिकल स्टोरेज, ठीक है। Replication independence. A system supports data replication if a given stored relationship, or more generally, a given fragment of a given stored relation can be represented by many distinct copies or replicas stored at many distinct sites. A system support data replication. डेटा को replicate करना मतलब एक ही सेम डेटा को जो है कॉपी करना। Can be given stored relation, or more generally given fragment of a given stored relation can be represented by many distinct copies or replicas stored in many distinct sites. कि जो है डेटा को हम रिप्लिकेट करके मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट साइट्स पे हम उसको स्टोर करें, ठीक है। रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंस, दिस प्रोवाइड्स बेटर अवेलेबिलिटी। क्या हो जाएगा, एक जगह पे डेटा पूरे का पूरा पड़ा हुआ है, दूसरी जगह पे डेटा जो है उसकी कॉपी बनती जा रही है। अब क्या होगा, वो डेटा क्रैश हो गया या करप्ट हो गया तो हम दूसरी जगह से उस कॉपी को जो है रिट्रीव कर सकते हैं। दिस प्रोवाइड बेटर अवेलेबिलिटी। अब डेटा हमारा अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल किस्म का डेटा है तो उस डेटा को जो है हम रिप्लिकेट करते रहते हैं, ताकि वो कहीं भी जो, जिस तरह बैंक्स का डेटा है, बैंक्स का डेटा, इमिग्रेशन का डेटा, आपका जो है वो नादरा का जो डेटा है, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव डेटा, तो वो डेटा जो रिप्लिकेट करते रहते हैं, उसकी कॉपीज़ करते रहते हैं, ताकि कहीं भी अगर वो क्रैश हो जाए तो दूसरी जगह से उसको अप किया जा सके। Disadvantage of this is what given replicated object is updated, all copies of that object must be updated. The updated propagation problem. We'll see update propagation problem क्या होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक भी छोटी भी मॉडिफिकेशन एक कॉपी में, एक डेटा में हुई, तो सारी की उसकी वही मॉडिफिकेशन सारी की सारी रिप्लिकेटेड कॉपीज जितनी भी हमें सर्वर पे बनाई हुई है, वहाँ पे भी ये जो है वो में कॉपीज़ अपडेट करना पड़ेंगी। एक तो हार्डवेयर इशू भी हो जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर हमारा बढ़ता जाएगा, ओके भाई ठीक है, हम उसको स्टोर करते हुए जा रहे हैं सेम डेटा को। उसके अलावा वी नीड टू अपडेट दैट डेटा, रेप्लिकेट, जैसी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई दूसरी कॉपी भी वो भी अपडेट होगी। तो हमारा ये जो नेचर है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की, ये भी जो है वो एडवांटेज तो ये है कि हमें सेंसिटिव डेटा के लिए डेटा को रिप्लिकेट करना पड़ता है। Distributed query processing. If user at New York site and the data is at the London site, user has to send request to London site from New York site and response will be sent from London site to New York site. कि अगर न्यूयॉर्क साइट से जो डेटा है, यूज़र न्यूयॉर्क साइट लंदन साइट डेटा को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यूज़र हैज टू सेंड रिक्वेस्ट टू लंदन साइट पे वो एसक्यूएल की क्वेरी भेजेगा न्यूयॉर्क से, एंड रिस्पॉन्स विल बी सेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन साइट। तो न्यूयॉर्क से वो डेटा जाएगा। क्या होगा कि अब इसमें नेटवर्क का एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी, वही बॉटलनेक का अगेन मसला ना आ जाए। तो ऑप्टिमाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट इट इज इन सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज में हमारे पास डेटा भी वहीं पे पड़ा हुआ, एक्सेस भी वहीं से करें, तो वहाँ पे हमें बॉटलनेक का इशू ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास होगा, क्योंकि हमें ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्टिमाइजेशन इज कॉल्ड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, कि क्यूरी को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए ताकि जो है हमें कम नेटवर्क को इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मैं आपको कहूँगा आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना के, तो एक बंदा कैलकुलेटर प्रोग्राम बना गया है, अभी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के वो 8 वेरिएबल लेगा 4 ऑपरेशन ये परफॉर्म करने के लिए, और 4 वेरिएबल लेगा हर किसी के ऑपरेशन के रिजल्ट को सेव करने के लिए। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल B+C, D इज इक्वल E+A, इस तरह से जो है वो
12 वेरिएबल्स लेगा, फिर जाके उसको स्टोर करा के फिर सी आउट के थ्रू डिस्प्ले करवाएगा। बेहतर ये है कि हम 3 वेरिएबल लें और एक ही ऑपरेशन c इज इक्वल a प्लस बी करें, फिर उसको डिस्प्ले करवाएं, फिर c इज इक्वल a माइनस बी करें, उसको डिस्प्ले करवाएं। इस तरह से हमें सिर्फ 3 वेरिएबल्स हमें जो है वो क्रिएट करने पड़े और हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। क्या होगा, दैट विल बी मोर ऑप्टिमाइज्ड। क्योंकि उसमें जो है वो जल्दी जो है इसमें जो है वो हमारी जो एक्सेस होगा वो फास्ट हो जाएगा और कम मेमोरी जो है वो लेगा। तो हमें ऑप्टिमाइज करना है ताकि हम उस प्रोग्रामिंग को रिड्यूस कर सकें। काम वही करना है लेकिन मेमोरी कम इस्तेमाल हो, ज़्यादा फास्ट हो। तो वही है कि जो क्यूरी होगी उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकें ताकि हम क्यूरी को रिड्यूस कर सकें, कम नेटवर्क को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ अवर एडवांस डेटाबेस सिस्टम्स कोर्स, जो कि हम जाके दैट विल बी अवर लास्ट चैप्टर अगर हम किया हम इंशाल्लाह कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। Distributed transaction management. Transactions are consist of several agents, where agent is the process performed in behalf of a given transaction. Transaction may be updating many sites at a time. This can be done using agents. So transaction management में है कि मुख्तलिफ transaction at a time मुख्तलिफ database sites को वो अपडेट करी होंगी. Recovery control should be also be there, because if any crash occurs, अगर कोई crash हुआ at any site, transaction should be roll back or commit. रोल बैक और कमिट का जो कॉन्सेप्ट है आपने होपफुली के डेटाबेस में पढ़ा होगा। रोल बैक का क्या है, अगर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है और हम चाहते हैं कि या डेटा को मॉडिफाई हो चुके, हम चाह रहे हैं कि वो डेटा मॉडिफाई नहीं हो, वो गलत हो गया हमसे, तो हम उसको रोल बैक कर सकते हैं वापस। और कमिट का क्या मतलब है कि वो फिजिकली जाके जब जैसे कमिट लिखेंगे, जो भी चीज़ हमने डीएमएल परफॉर्म की है तो वो जाके जो है वो अपडेट हो जाएगी। सो दिस इज रोल बैक और कमिट कैन ओनली अफेक्ट द डीएमएल कमांड्स इंस्टेड अपडेट डिलीट। वो डिटेल कमांड्स को जो वो अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन बैकअप और रिकवरी में हम डिटेल के कमांड्स को भी एक्सेस जो है वो रोल बैक और अपडेट कमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से करवा सकते हैं। दैट इज अनदर इशू एट द डिफरेंट लेवल। This effect can be achieved by means of the two-phase commit protocol. इंशाल्लाह we will be seeing the two-phase commit protocol के थ्रू हम कैसे distributed transaction management को कर सकते हैं। Concurrency control is in most distributed is typically based on locking, just as it is in a non-distributed system. Concurrency control का मतलब ये कि एक ही मतलब मुख्तलिफ यूजर्स एक ही तरह के डेटा को मॉडिफाई कर रहा होगा, तो उसी ट्रांजेक्शन को जो है वो उसी टेबल को जो है मॉडिफाई लॉक कर देंगे जब तक जो है दूसरा यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा या अपडेटेड डेटा नहीं देख पाएगा। जिस तरह से ऐसा होता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई दो प्रोसेस अगर एक ही तरह के रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहें जो कि होल्ड किया हुआ किसी तीसरे ने, तो वो लॉकिंग हो जाती है, डेडलॉक हो जाता है। तो दैट कैन बी अचीव्ड इन द कॉन्करेंसी कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस सिस्टम शुड वर्क ऑन एनी हार्डवेयर मशीन लाइक डेल, IBM, HP मशीन। अब ये प्रीवियस पुरानी पॉइंट हो चुकी है। अब एवरीथिंग शुड बी इंडिपेंडेंट। अभी तो चीज़ें क्लाउड पे चली गई हैं, तो वो क्लाउड पे जो है वो कोई सी भी मशीन हो हमारे क्लाइंट पे जो है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम शुड वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर टाइप को। हार्डवेयर किसी भी उस पर जो है वो इंडिपेंडेंटबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की नहीं होनी चाहिए। AMD हो, डेल हो, इंटेल हो, कुछ भी हो। Operating system independence, it is desirable not only to be able to run the same DBMS on different hardware platform but also to be able to run it on different operating system platform। कि ना ही सिर्फ DBMS हमारा एक डिफरेंट हार्डवेयर पे चल सके, लेकिन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी जो हमारा विंडोज़ पे, मैक पे, यूनिक्स पे जितने भी हैं इस पे जो है वो हमारा चल सके। तो शुड बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। एंड नेटवर्क इंडिपेंडेंट DBMS शुड वर्क ऑन एनी टाइप ऑफ नेटवर्क, वायरलेस, वायर, लैन, वैन, जो भी हमारा जो है सेटेलाइट जो भी है हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी उस पर चलना चाहिए, उसको जो है वो डिपेंडेबिलिटी नहीं होना चाहिए। एंड DBMS इंडिपेंडेंस सिस्टम मस्ट हैव एबिलिटी दैट इट कैन कम्युनिकेट अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस सिस्टम। एग्जाम्पल ओरेकल, DB2, MySQL। अब मुख्तलिफ कंपनीज जो है मुख्तलिफ डेटाबेस इस्तेमाल करी होंगी, तो हमारे DBMS मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। System can support homogeneous database or it can also support heterogeneous database systems। homogeneous database का मतलब ये कि सिमिलर किस्म के डेटाबेस दूसरी साइट पर चल रहे हो उसके साथ कम्युनिकेट कर सके, और heterogeneous database system यानी मुख्तलिफ डेटाबेस चल रहे हो तो उसके साथ भी हमारा कम्युनिकेट कर सकें। So guys, this is the end of today's lecture, and
So guys, this is end of the today's lecture. We have discussed about the 12 principles of distributed database systems, and inshallah I'll come with the next we'll start with the next chapter. That's also will be in the continuation of the advanced database system concept. So thank you guys, see you until the next lecture. Allah Hafiz.